Good evening, everyone. So glad you could all join this webinar on understanding the NCF and what does it say about math education in particular. Uh, I will just give you a small introduction about what we do and myself. I'm Varsha, part of the team at Aavishkaar. I'm also joined by my colleague here, Prapti, who's on the call. I would like to introduce the facilitator that we have for today. We have with us Ms. Sandhya ma'am, the founder of Aavishkaar and also the person who leads the math team, works in making math very relevant, contextual and visual for our children. At Aavishkaar, we have worked with over 9,000 teachers, educating them, equipping and enabling them to show excellence in math education and science. We have also directly and indirectly impacted over 1 lakh children since the time Aavishkaar has started. On that note, thank you all for joining us for this webinar. In the next 55 odd minutes, we will together unpack what the NCF is saying about math education. What can we take from the guidelines of math NCF to our classrooms? And how can we equip and prepare our teachers for the guidelines that the NCF says? In the first part of this webinar, it will be led by Sandhya ma'am, where she will engage you all with an activity. There are no particular rules for this activity. We invite you to engage, be active through the activity, and proactively also take notes so that our thoughts are there on paper and we can use those to ask questions during the Q&A session. So my request is that you actively engage and take notes. You can also use the chat box or raise your hands to ask any questions or concerns that you might have. Leading it over to Sandhya ma'am. Thank you. थैंक यू वर्षा. इसमें आप में से बहुत सारे नाम है जो मैं पहचान रही हूँ और बहुत सारे नहीं भी पहचान रही हूँ जो नए लोग हैं. सो आप सबको स्वागत है. अगर आपको हिंदी से दिक्कत है तो प्लीज राइट इट ऑन चैट और स्पीक अप. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर बोलने वाली हूँ, लेकिन अगर कोई है साउथ से जिसको हिंदी में दिक्कत है, प्लीज राइट इट ऑन चैट. किसी ने कुछ लिखा नहीं है तो मैं मान लूं क्या कि सभी को हिंदी भी आती है. ओके. So in today's sessions, we are going to talk about NCF, जो हमारा नया करिकुलर फ्रेमवर्क आया फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 बेस्ड ऑन NEP 2020. तो उसमें मैथमेटिक्स के बारे में क्या कहा गया है, हम उसके बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे. आविष्कार के बारे में जैसा वर्षा ने आपको पहले ही बताया, we work a lot with teachers and educators to reach our children, or we equip, educate and enable them to make science and math interesting, engaging and fun and justification based. मकसद बस यही है कि we can nurture curiosity, creativity and critical thinking through science and math education. वर्षा, मैं अपनी स्लाइड शेयर कर लूं क्या? तो I would have, ठीक है, मुझे शेयरिंग प्रिविलेज होगा ना? Yes, ma'am, you can go ahead. Yes, great. आप सबको स्लाइड दिख रही है ना? ओके. तो अगर if we see current math situation, then it looks something like this, है ना? अमीना जी, आप स्लाइड दिख रही है? ओके, थैंक यू अनु. तो अभी का सिचुएशन ये है, हमारे बच्चे नंबर्स देखते हैं, बच्चे और बड़े भी. They see numbers, they see operation and many of them want to run the other way. इसी चीज को हमें बदलना है. And NCF acknowledges this. So how does it acknowledge?
it acknowledges कि हमारे जो अर्ली ग्रेड्स का सभी जगह ये हाल है, तो स्पेशली इन अर्ली ग्रेड्स वी आर नॉट अचीविंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एंड दैट मीन्स, और क्योंकि मैथमेटिक्स तो सीढ़ी की तरह है, आप जंप नहीं ले सकते, हर एक सीढ़ी को चढ़ना जरूरी है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, मेनी ऑफ आवर चिल्ड्रन आर लेफ्ट बिहाइंड स्पेशली इन मैथमेटिक्स। और वो होता क्यों है? This is a page out of the NCF because it's very robotic and algorithmic in nature. मतलब कि आपको प्रोसीड्यूर करना है, पहले ये स्टेप होगा, फिर ये स्टेप होगा, फिर ये स्टेप होगा। But mathematics actually is not like this. So it's literally misrepresentation of the open and creative nature of mathematics. और एक समस्या और है, अगर आप लड़की है तो और आप प्रॉब्लम कर रही हो तो मोस्ट लाइकली सब लोग अज्यूम कर लेंगे आपसे तो होने ही वाला नहीं है। तो मतलब कि दैट मीन्स हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन वी एक्टिवली आर डिस्करेजिंग थ्रू आवर कल्चरल प्रैक्टिसेस। और जिस तरह से हम पढ़ाते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू एनसीएफ जो क्लासरूम में हो रहा है और जो रियल लाइफ में है, देयर इज नो कनेक्ट इन इट। तो our kids are not able to see that mathematics is relevant. And if this was not enough, हमारा जो assessment भी है, that encourages this memorization based method. So what you teach for, what you test for is what you're going to teach for. तो अगर assessment ही कह रहा है कि रट के आना चाहिए तो हम पढ़ाएंगे भी वैसे ही, तो बदलना थोड़ा मुश्किल है। और उसके कारण क्या होता है कि a real fear of mathematics set in, that is the last point, है ना। तो ये सब जब मैं ये सब बोल रही हूँ तो हम सब स्टूडेंट्स रह चुके हैं, तो आई वुड से कि हम सब ज्यादातर लोग इस बात से वाकिफ हैं, एंड दैट इज व्हाई 80% ऑफ आवर स्टूडेंट्स fear math and they will not be able to go to any STEM field anywhere is required. And what does NCF is hoping for? NCF is hoping for a shift in teaching learning method. और वो कैसा होगा? Play based, activity based, discovery based and discussion based. And that तो हमको जो चढ़ाई चढ़नी है बहुत लंबी है, क्योंकि अभी तक हम पढ़ाते कैसे हैं? क्लासरूम्स हम बताते हैं और बच्चे लिख लेते हैं, उसको नोट बना लेते हैं और फिर वही तरीका हो जाता है, फिर हम नंबर बदल देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से हमको लाना है डिस्कशन एंड डिस्कवरी बेस्ड। इट्स अ लॉट टू आस्क फॉर। तो हम सब whoever is working in the field of education, we are looking for इसको बदला कैसे जा सकता है। तो और ये सारा दारोमदार किस पे है? टीचर पर है। तो ये तो हो गई समस्या है, लेकिन है तो मैथ का सेशन, तो थोड़ी बहुत गणित भी कर लेते हैं। तो अगर आपने कभी आविष्कार का सेशन पहले देखा होगा तो ये आई होप आपने सुना है, और फिर से मैं यही बात बोलूंगी कि ब्रेन स्ट्रगल, दिमागी कसरत जो है, when we are struggling, that means we are learning something. If it was too easy and you were able to do everything, then you really didn't learn anything. So with this mindset we are going to move forward. तो आविष्कार में बहुत हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर है, हम उसको बोलते हैं गणित चर्चा। ये छोटी सी स्पेस होती है जिसमें कि हम एक सवाल के साथ थोड़ा जूझते हैं, उसके कुछ नियम है। तो आई एम गोइंग टू शेयर द रूल्स विथ यू। तो आई वुड इनकरेज यू, अगर आप नोट्स ले रहे हो तो थोड़ी देर के लिए पेन रख दो, सोचने के लिए बिल्कुल समय लेना, कोई हड़बड़ी नहीं है। और क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो यहाँ थम्स अप तो नहीं बोलूंगी, लेकिन चैट पे लिखने के लिए तैयार रहना अपना जवाब। और जब मैं पूछूं कि कैसे देखा, तो इफ यू कैन आइदर राइट और अनम्यूट, दैट वुड रियली हेल्प। ठीक, ओके। So my question is going to be, I'm going to show you 4 pictures and I'm going to ask you, what is it that you notice? क्या दिख रहा है आपको? And keep your mathematics hats on. What is it that you notice? You can write on chat or you can unmute and speak.
हाँ, तो पूनम जी कह रही है shapes दिख रहे हैं, shapes, yes. Shapes है मैम. हाँ, can you say a little bit more about the shapes? Akash says that they have the same figures with same areas. Thank you. Thank you, Gauri ji. Thank Figures with same areas. What else can you say? Yes, there are lines, same total area, shapes, squares, and triangles. Four squares in each figure, 4 equal squares in each figure. Okay, finding indirect method using graph paper. Closed figure of the same area, okay. Yes, everybody is writing shapes. What can you say about these shapes? Can you repeat? Yes, somebody was speaking. आप इन shapes के बारे में क्या बोल सकते हो? आपने बोला कि एरिया सबका बराबर है, ये मैं सबसे बार-बार सुन 2D shapes हैं, ठीक है, थैंक यू रुबीना जी. Krupali is saying it has same area but different perimeter. ओ, तो मतलब आप कह रहे हो कि एरिया एक हो सकता है और पेरीमीटर अलग-अलग हो सकते हैं. Interesting. They are regular and irregular shapes. Thank you. Okay. Shapes with corners. Okay. My other question to you is, आपने ये तो बोल दिया कि इन सब का एरिया बराबर है, सारे शेप्स अलग-अलग हैं, इनका पेरीमीटर अलग-अलग है, लेकिन एरिया बराबर है. तो मेरा अगला सवाल है, व्हाट इज इट दैट यू वंडर अबाउट? इससे कोई सवाल आ रहा है दिमाग में क्या? कुछ भी सवाल जो आ रहा हो दिमाग में. जैसे मैं पहला वाला शेप देख, हाँ, ओके, कैन द पेरीमीटर स्टे द सेम एंड एरिया बी डिफरेंट? हाउ मेनी अदर पॉलीगॉन्स कैन बी फॉर्म विद द ऑफ द सेम एरिया? वेरी इंटरेस्टिंग. और कोई सवाल? Are they related to each other? I am very curious which shape will have the least perimeter? Can they be juxtaposed to form one regular shape? Interesting. Okay. Yeah. Okay. So my question to you now is, हमने एक छोटी सी चर्चा की. Both in concept, think about the concept, my pedagogical practice and the mindset. What is it that you noticed? What did you observe me do? What did you observe your other participants do? Okay, participants talked about concept. Each one had a different approach to the same figure. Thank you, Akanksha. Okay, Praveen ji is saying it was engaging. Thank you. We were posing questions. We all had a thought to our response. We were being open to each other suggestions that made us think more. Thank you, Namita. Basic concept of shape is no. Thank you, Noor. Each had a different approach. Thank you.
There is no single correct answer. Thank you. Everyone has their own perspective to see given figures. You were facilitating and making us think and observe. You encouraged everyone to keep responding and no answer was right or wrong. Oh, thank you. Thank you, Ekta. Amina, when we read others' point of view, we started to think about it. Girish, basic concept of shapes. Thank you. Encouraged everyone to respond. No single correct answer. Thank you. Thank you. I see a lot of hearts to comments. I'm going to one day figure out how to do those hearts too. So this is what is Ganit Charcha. It just takes 5 to 10 minutes. Aim is we start interacting in mathematics and there is a discussion in classroom. Remember, I just read to you that it is discussion based. That's what is the aim of NCF. You were discovering things in it and you were sharing. Thank you, Gauriji. Open-ended question to initiate discussion. So this is an Aavishkaar motto that questions, discussion, and justifications deepen our understanding. And I hope if you have been thinking about it, you will take it to class also. So again, you have already said these things. I'm going to just reiterate it. It's important that we put a charcha up front so that everybody starts to participate and interact with each other. And that, as you rightly pointed out, we can see that there is no one way to do math. It has multiple perspectives. And that what we were doing, we were communicating in mathematics. The principles that we already saw NCF pages say. What else does the NCF say? So the vision that is there, that was pulled out from the NEP 2020 New Education Policy, it says that achievements that are valuable in knowledge, capacities, values, and disposition. तो आविष्कार की भाषा में इसको बोलूंगी. आविष्कार की भाषा में that means knowledge means conceptual understanding. Capacities means procedural fluency in terms of mathematics. Values with which we operate, and our mindset as to how we think about mathematics as teachers and how we think about our students in mathematics. So, and what does NCF say about classroom processes? I want you to give special attention to these 4 blocks that are drawn here. First one is oral math talk. In terms of Aavishkaar, we have always called it Ganit Charcha. Second is skills teaching. Skills teaching means once you have done the, you have engaged your students, you are teaching them some skills for which you are developing their conceptual understanding. And then you're practicing that skill so that a procedural fluency develops. And then you are reinforcing it through math games, through applications to the real world. So I'm going to, so what does all this mean? Means वैचारिक समझ, मतलब जो विचार, अगर हम रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं या फ्रैक्शन के बारे में, what is the fundamental, what is the big idea that we are teaching? वो बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए. Right now हम ये करने के बजाय ये करते हैं, procedural fluency, कि ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये स्टेप कर दोगे तो जवाब निकल आएगा. तो अगर हमने बोला कि 25 + 35 कितना होता है, तो हमारे बच्चे 60 बोल देंगे. लेकिन अगर पूछा 25 आम है और 35 आम है तो कुल मिला के कितने आम हुए, तो होने वाला ये है कि मैडम इसमें जोड़ना है कि घटाना है. तो
अगर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो वो सवाल नहीं आएगा। और उसके बाद हम तरह तरह से सवाल प्रेजेंट करते हैं सो दैट प्रोसीड्यूरल फ्लुएंसी हो। और जब समझ बन गई है और प्रोसीड्यूरल फ्लुएंसी बन गई है तो हम प्रोसीड्यूरल फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं। मतलब कि हमने सवाल को समझ लिया है, हमको उसका मैथमेटिकल प्रिंसिपल समझ में आ गया है, तो और हमको फ्लुएंसी भी हो गई है, तो अब मैं संख्याओं को किस तरह से तोड़ मड़ोड़ कर उनके साथ कुछ करना चाहती हूँ, ये मेरी आजादी होगी। इफ आई अंडरस्टैंड 27 means 20 plus 7, I can break it in, or it means 9 times 3. I can break it depending on how I'm going to use it. तो अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है और कोई सवाल आ गया है तो मैं शायद उसको 9 times 3 करके अलग अलग तरह से तोड़ दूं। अगर सिर्फ जोड़ने का है तो शायद 20 plus 7 कर दूं। I know if I have conceptual understanding and procedural fluency, तो flexibility आएगी और उसके बाद I would be using it in real world applications. तो मुझे लगा कि ये जो है ये कोर है मैथमेटिक्स का जो एनसीएफ कराने की कोशिश कर रही है। तो लेट्स ट्राई टू डू समथिंग लाइक दिस। और ये कब पॉसिबल है? व्हेन टीचर हैज द माइंडसेट कि उसमें माइंडसेट में क्या क्या चीजें हम हाउ डू वी अप्रोच। जैसे कि अभी हमने वी डिड अ डिस्कशन बेस्ड क्लासरूम जिसमें मैंने आपके सामने एक प्रॉब्लम पोज किया, आपने अपनी समझ से अपने अपने विचार लेकर आए और एक दूसरे के विचारों से हमने सीखा और फिर हमने उस चीज को और आगे बढ़ाया। So we did notice, we did wonder, we could do many other things. I had just put one example of Ganit Charcha there. And when the teacher feels that every opinion is valuable and the teacher is curious about everybody's opinion, which NCF also says, तो तभी तो हम पूछेंगे ना और हम जानने की कोशिश करेंगे कि एंड जब हम जानने की कोशिश करेंगे तो हमारे बच्चों को लगेगा कि my opinion contributes to the discussion and that I must answer. So that is the mindset with which the NCF wants our teachers to operate. ये तो ओवरनाइट हो नहीं सकता है, इसके लिए तो बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए और बहुत सारे एग्जाम्पल्स चाहिए। And one such example I am hoping that I can present here. ठीक है? तो आपके सामने एक और चर्चा है। Which of these shape takes more space on the screen? दोनों ने बट अलग अलग शेप में। उन्होंने जो बी वाला उसने लंबाई में और जो ए वाला है उसने इक्वल शेप दी है। ठीक है, तो they occupy the same space, both are equal. B, so I'm good. Will depend on the area, and that is what I'm asking you to. I'm using that estimation, or I'm going to hook you by estimation so that you want to know कि किसने ज्यादा लिया है ना। अगर मैंने पहले ही बता दिया होता कि एक ज्यादा है या दूसरा, difficult to say without dimension. I'm asking you to estimate, देखकर अंदाज लगाने की को, मतलब कि अपना मैथमेटिकल नॉलेज जो मेरे पास है उसका इस्तेमाल करके आई एम गोइंग टू मेक एन एजुकेटेड गेस। सो सम पीपल आर सेइंग विच ऑफ द टू, कंपैरिजन करने के लिए बोल रही हूँ, ए ज्यादा है या बी। ठीक है, तो सम पीपल आर सेइंग बी, सम पीपल आर सेइंग बोथ आर इक्वल। ठीक है, एंड हाउ दोज हु आर सेइंग बोथ आर इक्वल, आपको कैसे पता चला? आपने क्या किस तरह से वो एस्टिमेट लगाया है? जैसे स्क्वायर में ना बी को अपन ब्रेक करे, बी को अपन 2 हाफ्स में कर दिए विदाउट मतलब हाफ करे और ज्वाइन करे तो दे विल फॉर्म द स्क्वायर, मतलब सेम उसकी वजह से। ओके, अच्छा। और जिन लोगों को लग रहा है कि बी ज्यादा है वो क्या सोच रहे हैं? कैन समबडी, एनी वन ऑफ यू स्पीक अप, कि बी आपको क्यों ज्यादा लग रहा है? किसी ने ए नहीं बोला है। Whatever comes to your mind, कुछ आपका कारण रहा होगा उसको बोलने का, तो वो क्या कारण है?
Why does B look more to you? Anybody? मैम स्क्वायर की जो 4 लाइन साइड्स हैं वो इक्वल हैं हम्म और जो रेक्टेंगल है उसकी 2 साइड्स इक्वल हैं, अ लेंथ एंड ब्रेथ। हम्म तो ये अपनी जगह मतलब स्क्वायर जो है अपना स्पेस रख रहा है और रेक्टेंगल अपना एक स्पेस घेर रहा है। तो सर आपको दोनों में से ज्यादा कौन लग रहा है? नहीं, बोथ आर इक्वल मैम। अच्छा, बोथ आर इक्वल। अच्छा, प्रवीण जी का कहना है कि वो लंबा एक साइड से ज्यादा इसलिए उनको लग रहा है। मैम अगर इनको हम नंबर ऑफ लाइन में लेके जाएंगे ना 1 1 1 में, तो हो सकता है इनका आंसर ना एक ही आए। सर मैं लाइनों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जगह घेरने की बात कर रही हूँ, यानी कि एरिया। कौन ज्यादा जगह घेर रहा है स्क्रीन पर? ठीक है, तो बहुत लोगों ने बोला है कि अगर हम उसको छोटे छोटे स्क्वायर्स में काट लें तो पता चल जाएगा। तो लेट्स ट्राई टू डू दिस। ठीक है, तो ये जो हमने किया, अगर एनसीएफ की भाषा में दिस इज एन ओरल मैथ टॉक, और आविष्कार की भाषा में ये हमेशा से गणित चर्चा रही है। तो जैसा आपका सजेशन है मैं वही उसी को इस्तेमाल करूंगी, और मैंने क्या किया, एक छोटा सा ब्लू स्क्वायर रखा है, उसमें गिनने की कोशिश करूंगी। मेरा विश्वास करना होगा कि वही वाले रेक्टेंगल्स दोनों मैंने ऊपर रखे हैं, चीटिंग नहीं की है। ठीक है, तो यहाँ लग गए पहली लाइन में 4, दूसरी लाइन में 8, और तीसरी लाइन में 4 और 12, और वही इसमें भी कर रही हूँ। तो लगे कितने? 12। ठीक है, तो अगर मुझे गणित की भाषा में बोलना होगा तो ऊपर वाले स्क्वायर में, ऊपर वाला जो रेक्टेंगल है उसमें किस तरह से स्क्वायर फिट हुए हैं? ऊपर वाले में, if somebody can help me write in terms of mathematics, या आप अपनी भाषा में हिंदी में ही बोल देंगे तो भी चलेगा। 4/3 तो 4/3 का मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा वो समझाएंगे? rows and 4 groups containing 3 squares each. मैम कॉलम और रो। तो आप कह रहे हैं, अच्छा 4 columns of 3, 4 columns Yes, ma'am. 4 of times 3 squares, और नीचे वाले में क्या बोलिएगा? 6 times 2. 2 times 6, ma'am. ठीक है, रुकिए मुझे यहाँ 6 थोड़ा columns of 2 squares. ठीक है, तो नीचे आप बोल रहे हो 6 columns of 2 squares. 2 रो। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इसको ये बोल सकती हूँ 4 times 3 squares। ठीक लग रहा है क्या? और इसको बोल सकती हूँ मैं 6 times 2 squares। और टाइम्स को हम गणित की भाषा में कैसे लिखते हैं? 6 multiplied by 2. तो ये हो गया 4 multiplied by 3, और ये हो गया 6 multiplied by 2। ठीक है, यस मैम। ओके। तो अभी फिर से स्क्वायर रखा हुआ है, और मैं सब जगह ये स्क्वायर एक कोने में रख देती हूँ। तो लेट्स सी, आप येलो वाले स्क्वायर के बारे में बता सकते हैं कि उसमें नीले वाले कितने छोटे स्क्वायर्स फिट होंगे? Ma'am, 8 times. 8 कैसे देखा उसको? नीचे एक लाइन में कितने थे? आ जाएंगे फिर ऊपर 4. 4 times 2. अच्छा,
तो 4 times 2 बोल रहे हैं, ठीक है। इस वाले में, पर्पल वाले में 9. 3 times 3. कैसे देखा? 3 times 3. 2 times 3. अच्छा, ग्रीन वाले में कैसे देखा? 6. 3 times 2. 6, ma'am. 3 times 2। तो देखिए आप लोग सब बहुत होशियार हैं और फटाफट मुझे बताते चले जा रहे हैं। अब ये वाले का भाई बता दीजिए उसी हिसाब से। 5 times 2. 5 10 हो जाएगी। 5 times 2। 5 times 2. तो आपने कुछ पैटर्न देख लिया है ना, जो रिपीट हो रहा है, और आपने उससे सबको प्रिडिक्ट कर दिया। तो अब मैं इसी को और आगे ले जाता। तो दिस इज अगेन आई एम डेवलपिंग प्रोसीड्यूरल फ्लुएंसी, कीपिंग कॉन्सेप्ट एट द सेंटर। ओ सर, ओके, मुझे लगता है फिर से, अच्छा नहीं, इंटरनेट है, ठीक है। तो किसी का भी निकाल सकते हो, किसी भी रेक्टेंगल का निकाल सकते हो। यस मैम। हाँ, तो क्या होगा इसका? अगर एक साइड एल है और दूसरी साइड बी स्क्वायर्स है, एक तरफ एल स्क्वायर दूसरी तरफ बी स्क्वायर्स, L times B. L times B. ठीक है। तो ये हम एरिया सिखा रहे हैं और हमने फॉर्मूला निकाल लिया है ना। अगेन थिंक अबाउट योर 5th और 6th ग्रेडर हु स्टडिंग एरिया। तो अब उसको मैंने आगे अगेन स्किल प्रैक्टिस प्रोसीड्यूरल फ्लुएंसी बिल्ड कर ली। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई इट। तो जैसे मैंने ये रख दिया शेप, उन्होंने रेक्टेंगल के बारे में रखा है, मैंने रेक्टेंगल नहीं दिया, कुछ और दे दिया, डायमेंशंस दे दिए हैं। तो व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ दिस एल लुकिंग थिंग? क्या करेंगे हम उसके लिए पहले, या फिर आप कैसे निकाल रहे हो बताओ। हाँ, तो किसी का आइडिया है? इसको 2 रेक्टेंगल में डिवाइड कर दें। Yes, of course. First of all, we will We increase, can put horizontal like, line in. Yeah. ठीक है, तो एक आइडिया आया कि हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे बोल रहे हो कुछ? Yes, we Yes, will yes, put ma'am. vertical also, ma'am. Vertical also we can put. 2 methods तो से किसी की वर्टिकल भी कर सकते हैं। ये येलो कलर में नहीं दिख रहा है, लेकिन आइडिया लग रहा है आपको, ठीक है। तो कितना हो गया एरिया पूरा इसका? 3 by 1 3 and 4 by 1 4. 3 plus 4 7. ऊपर का 3 हो जाएगा ना। 6 हो जाएगा मैम। अच्छा, 3 से तो कम हो गया। 4 by 1 और 2 by 1। और इधर 3, तो टोटल 6 हो एरिया गया। 6 जाएगा। 6 हो जाएगा मैम। 4 by 1 2 by 1। और मैं बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ कि ऑनलाइन भी वही लिख रहे हैं, 2 रेक्टेंगल्स 1 स्क्वायर। तो बहुत तरीके से इसको बांटा जा सकता है ना। तो मैंने यहाँ क्या किया, आई बिल्ट दैट प्रोसीड्यूरल फ्लेक्सिबिलिटी। तो नाउ लेट्स अप्लाई इट, है ना। And in the language of NCF, this becomes math games or application. तो सवाल मेरा आपके साथ ये है कि you have 72 tiles, ठीक है। फुट बाय फुट का जो मिलता है बाजार में वो है। तो let's make write it in your notebook, in your chat. Make 3 different room sizes that will use all these 72 tiles. Okay. One answer I have from Akanksha, 72, 12 times 6, 9 times 8, 8 times 9. Three times 4, 8 times 9, 12 times 6, 9 times 8, 6 times 12. Looks like nobody is willing to break their tiles. They want to use all holes. Who said that? I didn't say that. There is no, it does not say in this
question that the room has to be a quadrilateral. You can do whatever you want. And this kind of problems are called open-ended problems. We generally tend to give, there is one side of a rectangle has side 8, the other one has 9. What would be the area? Here we flipped it around. We said the room has 72 tiles on the floor. What could be the room dimension? So your creativity is the limit. You can take the problem wherever you want. And then it gives you that freedom to play with the problem. And that is what is the application. And let's see what NCF has to say about this. Thank you everybody for participating. I really appreciate it. It says the children should be able to explore several strategies of solving. I hope you saw that. Offer multiple the problem is that they should be able to offer multiple correct answers. And it should be open-ended, as you already saw that. This is something we haven't worked out on this session, that students should be able to pose problems. I hope you saw this fourth point here. Let me get my pointer back. Yeah. I hope you saw that, how we explored, created, and understood the problem. And again, meaningful practice by using tiles or rectangles where you were thinking about it. And again, exploration, discovery, and creativity. The subject should emerge that way. That is the nature of mathematics. Mathematics is not procedural, not mechanical. It is very open creative process. But इसमें democracy नहीं चलती है. जब आप 72 है तो 72 ही आएगा. लेकिन करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं. और यहाँ पर जैसे आपने देखा, first we drew, and then I asked you to predict, and then notice the pattern, and then we generalized and came up with an abstract formula. So it should naturally, the progression should go that way so that students understand the use of abstraction. Right now, we just give them the formula. और अगर formula भूल गया तो एरिया नहीं निकाल सकते हैं. लेकिन अगर उनको दिखता है कि वो कहाँ से आया, तो अगर formula नहीं भी याद है तो निकल जाएगा. लेकिन उसके लिए चाहिए क्या? Teachers' conceptual understanding and their pedagogical skill to be able to create that room for discussion, discovery, and exploration. और एक चीज और NCF बोलता है ना, children must feel that they belong, that they can trust. They must feel free to try out and explore and therefore learn better. और ये होने के लिए teacher values and mindset extremely important. उसके बिना नहीं हो सकता है. अगर बच्चे को लग रहा है कि मैडम ने से सवाल पूछा तो डांट देगी, या फिर मैंने गलत जवाब दिया तो सब हंस देंगे, तो नहीं होने वाला है. उसके लिए we have to be able to create that safe space. और वो possible है teacher mindset and practices से. तो सारा का दारोमदार teachers पर है. Teachers are the torch bearers. And that is why this NCF has the prime focus as teachers. Because it's their practices that's going to change the school system, the way it's being taught. तो सब उन्हीं को करना है. So all our job is to support them and show them different practices, how it can be made possible. And this particular webinar, its aim is to reach teachers and to be able to show how is it possible. So again, according to NCF, आपने मुझे देखा करते हुए भी, I asked you to see those little squares fit into the rectangle and then convert it from the language of English to the language of mathematics when you told me
that 4 times 3 squares. So again, stressing it that mathematics is a language. It is all around us. It can be made visual, which we just did. And as you saw, it can be done in multiple ways. And the way you kept justifying as to how you came up with the answer, it's the process of justification that deepens the understanding. And we continuously were quantifying even this area in terms of mathematics. And that is what is the expectation of NCF 2023. We just took one part and took a little part of NCF and tried to work in mathematics. There is much more in NCF, but I guess in one session, probably I can do this much. And with the hope that math books will be back in the comic and fun section and not in the horror section. As Varsha had promised, we would open the floor for questions. And if you have anything that you want to discuss or ask the group, we can take it at this time. We still have 15 minutes. कुछ भी दिमाग में चल रहा है तो बोलिए. ये पाई तो बहुत ज्यादा आ गया भाई. अब मुझे समझ आ रहा है आपको एप्पल पाई चाहिए या फिर पाई का हिसाब चाहिए. Good evening, ma'am. I don't have a question, but it's kind of a concern that I have been a school teacher. I left my job 2 years ago, and I have realized that in school we are always after completing the syllabus. So why is it not that I have suggested in my school many times that yes, the children have to give board exams in 10th standard, but can we not do something like this, that we have for first standard only 2 concepts are cleared, in second standard again 2 concepts, and then we actually connect those concepts, and then when they reach 8th or 9th standard, all their concepts are clear. What happens in 7th standard, there are 14 chapters. We are always after completing the syllabus. So how can we teach like this in school? It's, if I discuss one, small concept in the class of 30 minutes, it's really difficult. Now I'm, when I, teach someone, my nephew or my niece, I enjoy it more. I've never enjoyed so much in school. So, yeah. So how do we do that in school? How do we manage that in school? Because that is a concern, big concern. तो मालूम हमको जिस तरह से पढ़ाया गया है ना, हम वैसे ही पढ़ाते हैं. It's just like being a parent. आपके माँ बाप, हमारे माँ बाप ने हमें जिस तरह से रेस किया, हम वैसे ही अपने बच्चों के साथ करेंगे. और टीचिंग में भी ऐसा ही है. जैसे हमारे टीचर ने पढ़ाया, वैसे ही हम पढ़ाएंगे. वो अपनी तरफ से जितना जानते थे, बेहतर से बेहतर उन्होंने करने की कोशिश की. लेकिन क्या होता है ना, समय के साथ चीजें समझ बदलती है, लेकिन वो पुरानी वाली चीज में बहुत सारी नई चीजें जुड़ जाती हैं. जैसे कि मैथमेटिक्स एजुकेशन पे इतनी रिसर्च हो रही है, अगर उसको क्लासरूम में नहीं लाए तो वो रिसर्च बेकार की हो गई ना. तो मुझे लगता है कि हमें, वी एज एजुकेटर्स, we really have to keep abreast with the latest research that is happening in the area. और अगर वो नहीं कर सकते हैं तो find partner with institutions जो वो कर रहे हैं, और फिर देखें कि हम उसको अपने क्लास में कैसे ले जा सकते हैं. क्योंकि टीचर इज द पर्सन हु इज गोइंग टू डू इट. तो उसको अपने आप को एम्पावर करना होगा, उसके पूरे सपोर्ट सिस्टम को टीचर की मदद करनी होगी, और टीचर को विश्वास करना होगा, उसको वो आजादी देनी होगी. क्योंकि मुझे लगता है ना, अगर 2 कॉन्सेप्ट भी पढ़ाए, अच्छी तरह से समझ में आ गया है ना, तो हम कहीं अप्लाई कर सकते हैं. अगर समझ में नहीं आया और हमने खत्म कर दिया, तो सिलेबस तो खत्म कर दिया,
लेकिन अभी देखिए ना, अभी 8th ग्रेड में बच्चे हैं और डिवीजन नहीं आता है। और ये नहीं है कि कोविड से हुआ, कोविड के पहले भी वही हाल था, 2-3% बढ़ गया होगा, लेकिन उतना ज्यादा अंतर नहीं पड़ा। पहले भी वही हाल था, अभी भी वही हाल है। तो जो हम कर रहे हैं वो तो नहीं काम कर रहा है, तो इट हैज टू फंडामेंटली चेंज। और चेंज करने के लिए सिलेबस हटा दोगे लेकिन वैसे ही पढ़ाते रहोगे तो फिर भी वही समस्या बनी रहेगी। तो अपने पढ़ाने के तरीके को ही तो बदलना पड़ेगा ना, और ट्राई करना होगा, हमको एक्सपेरिमेंट करके तो देखना ही होगा, क्योंकि ये वाला तो नहीं काम कर रहा भाई। एंड दैट इज वाई हमने तो ये सेशन भी इसी पर्पस के लिए लिया कि ये हम दिखा सकें कि और भी तरीके हैं, ट्राई करके देखो। यहाँ पर एक सवाल है आकाश का, डज एनसीएफ टॉक अबाउट वेज इन विच टीचर्स कैन डेवलप इम्प्रूव देयर स्किल्स? Is there a repository of sessions content like these that can foster better teaching? तो आकाश जी, हमारा काम ही ये है, हमको यही करने में मजा आता है, एक्चुअली हमको यही आता ही है। तो yes, there is a lot of content like this, we continuously keep making it. NCF, yes, NCF talks about it. वो जो 4 चीजें मैं बोली ना, नॉलेज, मैं हमेशा उसको आविष्कार की भाषा में बोलती हूँ, नॉलेज, स्किल and mindset for teacher, so that students will have conceptual clarity, procedural fluency, procedural flexibility, and they would be able to apply what they have learned. तो teacher, NCF does talk about कि क्या होना चाहिए, लेकिन कौन करेगा, अगर वो होगा तो मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। एनी अदर क्वेश्चन, कुछ भी दिमाग में चल रहा हो जो आप इस वक्त उसके बारे में बात करना चाहें? We have one more question. हाँ छवि बोलिए। I just love your sessions. आपका कुछ ऑनलाइन कोर्स ऐसा है टीचर्स के लिए? क्योंकि आपका जब देखते हैं तो वी एंजॉय, और हमें लगता है हम ये क्लास में ले जाएं अपना, बट वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड होता है, एक टॉपिक या 2 टॉपिक। तो इज देयर एनी ऑनलाइन कोर्स दैट वी कैन ज्वाइन एंड वी कैन लर्न सच थिंग्स फ्रॉम यू? प्राप्ति, आप स्पीकर फोन पे आके बोल सकते हो कुछ क्या? यस 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 यस, मैं बिल्कुल सुन रही थी, मुझे पता था ये सवाल मेरे पास ही आने वाला है। बिल्कुल छवि जी, एंड फॉर एवरीवन, हम लोग अपने सोशल मीडिया पे तो अपडेट देते ही रहते हैं, बट वी डू हैव प्रोग्राम्स, 3 month, 6 month, year long programs that we do with our partners. After this webinar, we will also share details of the same with you over email, और towards the end हम अपने सारे social media handles भी chat box पे डालेंगे। So there are programs that are running, you can enroll, you can reach out to me, हम अपनी email addresses भी share करेंगे, so that you can have more information on how we do it. So we have, as Prapti said, we have lot of courses: primary mathematics, middle math, high school math, primary science, middle science. Courses are in modules. जैसे कि अभी fraction is होता है ना, सबको डर लगता है समझाने में, आधे से ज्यादा बच्चे खो जाते हैं, क्योंकि हम लोग भी खो जाते हैं बहुत बार बताते बताते। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? तो there are modules like that we offer. तो अगर इंटरेस्ट होगा तो बिल्कुल बोलिएगा। So I briefly mentioned about critical thinking in the beginning. Could you shed some light on what NCF says about basic critical thinking skills like observing, reasoning, describing and investigating? और पूरा NCF में बहुत कुछ भरा हुआ है, और आपने I hope ये आप देख सके। मैंने जो चर्चाएं की उसमें शायद यहाँ के चर्चाओं में उतना निकल के नहीं आया। तो जैसे कि आप देख रहे थे वो एरिया वाली चीज जब कर रहे थे, तो लोगों के देखने के अलग अलग नजरिए थे कि वो 2 रेक्टेंगल जो थे, उस रेक्टेंगल में किस रेक्टेंगल का एरिया ज्यादा है। कुछ ने उसको काट के आधे से ऊपर रख दिया, कुछ ने कहा कि छोटे छोटे स्क्वायर्स में तोड़ दूं बराबर स्क्वायर्स में तो क्या होगा। तो देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो when we see something, when you saw the problem, you became curious about what is it that is happening, which area is bigger,
through your creativity, you came up with different ways of estimating and coming up with a solution. अभी बहुत बार होगा ना, बहुत सारे तरीके होंगे, और हम क्या करते हैं, in all these ways we finally choose a way to do it, and that is our critical thinking, that हमारे पास जो इतने सारे तरीके हैं उसमें से हम एक तरीका उठा के करने जा रहे हैं, and I am able to justify कि मैं वो तरीका क्यों चुन रही हूँ. Fully in another session we will talk about it some more. रुचि, मैंने आपका हाथ देखा था खड़ा था, कुछ सवाल पूछना था क्या? नहीं मैम, सवाल नहीं था, यही था कि पिछली बार भी मैंने आपका अटेंड किया था सेशन, तो आपने बहुत अच्छी मैथ्स की एक्टिविटीज कराई थी जिससे हम अपने स्टूडेंट्स को एंगेज रख सकते हैं। तो आप जो आगे के सेशंस रखें आप टॉपिक वाइज रखें, जैसे जो हमारे 6th 7th 8th के होते हैं ना, जैसे मेनली हमारे बच्चों को अलजेब्रा में प्रॉब्लम आती है, ज्योमेट्री हम फिर भी करा पाते हैं कॉन्क्रीट चीजों से, लेकिन अलजेब्रा बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसे बच्चे प्लस माइनस की गलती बड़ी क्लासेस तक करते रहते हैं। तो कुछ ऐसे मेथड्स हमें बताएं कि हम बच्चों को प्रैक्टिस करा सकें उसकी, मतलब टॉपिक वाइज होंगे तो हमारे लिए और ज्यादा अच्छा रहेगा। Sure. संध्या मैम, वन मोर क्वेश्चन, सॉरी टू इंटरप्ट। जैसे रुचि मैम ने कहा, मैंने लास्ट टाइम आपका अटेंड किया था तब भी मैंने एक इंटीजर्स का क्वेश्चन पूछा था कि माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस क्यों हो जाता है। बच्चों को समझाना बहुत दिक्कत होती है और शायद लॉजिकली मैं भी नहीं निकाल पा रही हूँ। आई नो वो ठीक है, बट व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। तो एक बार अगर उस पर कुछ इंटीजर्स पर आप कर पाए आगे, और जिसमें हम डिटेल में कुछ चर्चा कर पाए कि कैसे हम बच्चों को वो प्रोडक्ट वाला जो माइनस माइनस है, एवरीथिंग इज इजी, प्लस माइनस माइनस क्यों होता है, प्लस 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 क्यों होता है, बट माइनस माइनस प्लस क्यों हो जाता है, दैट इज रियली डिफिकल्ट, बच्चे रटते हैं। तो अगर उस पर थोड़ा सा बात। हाँ, मतलब कि आपने तो कौन सी भी फिल्म आई थी, वो शाहरुख खान की फिल्म थी कुछ, जिसमें कि अंत में वो जीत जाएगा और कुछ हो जाएगा, है ना, लेकिन उसके लिए पूरी मूवी देखनी पड़ती है अंत में उसकी जीत अप्रिशिएट करने के लिए। ये माइनस माइनस प्लस क्यों हो जाता है, ये वाला भी वैसा ही कहानी है, कुछ पूरी कहानी सुननी पड़ेगी उसके लिए। तो वो एक सेशन में तो नहीं हो पाएगा, उसके लिए लग जाएंगे 2-3 सेशन। तो अगर कभी मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे। एक और सवाल कुछ आया है, एनसीएफ torture. However, in school, most curriculum decisions are taken by principal and management who are not the core educators. What would be your insight to influence their decision making in such changes in foundational approach to mathematics? सवाल तो बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है ना, और ये हम कर रहे हैं, हमने अब करना शुरू किया है। टीचर को जब ये सेशन देखते हैं तो उनका बाय इन होता है। तो अब हम यही काम अपने प्रिंसिपल्स के साथ भी करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी प्रिंसिपल फोरम में अगर हमें कोई बुलाता है या हमें मौका मिल जाता है जाने का, तो हम डेफिनेटली जाकर उनको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप देखो, दिस इज व्हाट इज पॉसिबल। तो अगर हमारी तरफ से ये कोशिश है, आपकी तरफ से भी शायद अगर ये आप दिखा सकोगे तो बहुत अच्छा होगा। How can teachers shift their focus from right answer to the process of solving question? ओहो, बहुत अच्छा सा प्यारा सा सवाल पूछा है। जब मैंने इस ट्रेनिंग की दुनिया में कदम रखा ना, तो मैं हमेशा बोलती थी कि we must value all opinion, और उसका वैल्यू ऑल ओपिनियन मतलब कि सभी को लगे कि उनकी बात सुनी जा रही है। तो मैं सवाल पूछती थी कि आपने कैसे किया, या फिर कोई दिखाया कुछ और पूछा कि जवाब क्या है। सबने जवाब बोला, मैंने पूछा किसी और का कोई और जवाब, उसको लिखती थी, और उस तरह से आई वुड से वैल्यू ऑल ओपिनियन। और उसके बाद फिर मैं पूछती थी कि आपने कैसे किया, वो लिखती थी, वो दिखाती थी ड्रॉ करके। फिर मैं पूछती थी किसी और ने किसी और तरह से किया क्या। बट ओवर द ईयर्स मेरे में एक बहुत, मैं बोलूंगी, बदलाव आया है, और वो ये है कि आई एम जेन्युइनली क्यूरियस कि किसी और ने किसी और तरह से कैसे किया। और मैंने देखा ना, जब ये जेन्युइन क्यूरियोसिटी आ गई ना, तो कुछ करने की जरूरत आई ऑटोमेटिकली वैल्यू ऑल ओपिनियन। तो अगर इफ आई एम क्यूरियस, देयर इज जस्ट नो अदर वे। और तब उसमें क्या होता है ना, कि मेरा इंटरेस्ट होता है प्रोसेस में, ये किया कैसे इसने,
गलत भी किया, आई डोंट केयर कि गलत किया कि सही किया, आपके सोचने का तरीका जब मुझे पता चलता है तो मुझे बड़ा मजा आता है। और वो जब मैं, आप जो सोच रहे हो और जब मैं उसको ड्रॉ करके सबको दिखाती हूँ, तो मैंने हमेशा देखा है कि सभी को मजा आता है। एंड एक्चुअली यू विल हियर अ कलेक्टिव वाओ अगर किसी ने बहुत यूनिक तरीके से कर दिया, तो वो अप्रिसिएशन भी, बिकॉज वी आर नेचुरली क्यूरियस, वी लव लाइक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन। तो दैट इज हाउ आई वुड से कि टीचर्स, अगर टीचर्स को, क्योंकि उन्होंने किया नहीं है ना, एक बार करने लगेंगे और आज करने की आदत पड़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली राइट आंसर से तो फोकस हट ही जाएगा। तो मुझे दिख रहा है कि 1 मिनट और बचे हैं। किसी और का कोई और सवाल इससे पहले कि मैं सेशन क्लोज करूं? पहले तो आप सबका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इतने खूबसूरत सवाल पूछने के लिए। ऑलवेज एंजॉय वर्किंग विथ teachers and other educators and anybody who's interested in the field of education and wants to listen to us, क्योंकि मुझे लगता है कि ये तो बदलना ही पड़ेगा। If there are any more questions, please free to put it in the chat box, or you can also unmute and share. In the meantime, I'll share a quick poll that you can fill just as a feedback for us to know what went well. I'm starting the poll. Please take your time to answer the poll. Thank you. If there are any more questions, you can post it on the chat or reach out to us through any of the social medias that I have mentioned on the chat box. I will also repost it again in case any of you have missed it.